Hello friends, a very good evening. Prachi Srivastav this side, Group Head Corporate Relations, Sagar Group of Institutions, SysTech Bhopal. I would like to welcome you all in today's session, and I hope you all are staying safe, staying at home. And yes, of course, we all wanted to come out from this COVID-19, and of course, we all wanted to get back to new normal. So previously, since last 15-20 days, we are receiving many queries, many messages, about career. 12th passing out students are really keen to know about their career paths, what to do after 12th, whether you take fields like engineering, commerce, law, pharmacy. Number of questions and queries are arising. So we thought of to have this platform and let us resolve all their queries as early as possible. So I would like again to welcome you all in today's session, that is career counseling of 12th passing outs related to resolving their queries during COVID-19. And yes, we all wanted to get out of this and come back to new normal. So let's talk about this particular era from where we are talking about to freezing out this education sector and coming out to be an entire new generation education sector. So let's talk about the Sagar group. So number one, you have to be clear with a very first thing that Sagar group is not only an institution or a group of education. It is into manufacturing, it is into construction business, and yes, into education as well. So, and we are coming up to the expanding ventures in the coming years. So with the able leadership of our Honorable Chairman Sir, Sudhir Agrawal Sir, and with the visionary leadership of our Managing Director Siddharth Agrawal Sir, we all wanted to have this platform of education and track down to a level where all the innovators are combined together to come up with the new world. So I would like to request you to start the session, and please write in your comments about the queries and all the questions related to career counseling, especially for 12th passing outs. I request all the parents and students, those who are watching, please come up with your queries so that I will answer them. So I guess our very first question is related to what stream we can have it once we are clearing the 12th standard. Alright, so this question is being asked by Neha. Neha, first of all, welcome to this session, and it's a good question. Like, once you will be completing and finishing your 12th standard, you have to come up with n number of options and career choices. So you have to go forward with your choice, with your interest. मैं सभी पेरेंट्स से जो इसको देख रहे हैं और सभी स्टूडेंट्स से आई विल रिक्वेस्ट यू वन थिंग दैट वेन एवर यू आर सिलेक्टिंग अ ब्रांच, किसी भी ब्रांच को सिलेक्ट करने से पहले आप ये मत देखिए कि आपके बच्चे का परसेंटेज क्या है. आप ये देखिए कि उसका इंटरेस्ट इन सालों में कहाँ तक डेवलप हुआ है और किस एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में वो अपना आगे का करियर बनाना चाहता है. सेकेंड, उनके दिमाग में ये क्वेरी आती है कि इससे इनका फ्यूचर आगे आने वाले सालों के लिए कैसा होगा, 2 साल 3 साल और 4 साल के बाद जब ये अपनी डिग्री करके निकलेंगे. व्हाट अबाउट द जॉब सिनेरियो? लेट मी क्लियर यू वन थिंग, जॉब रिसेशन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता. ज़्यादा बड़ी बात ये होती है कि क्या हम उसके लिए रेडी हैं, क्या इंडस्ट्री हमें लेने के लिए तैयार है. तो फोकस इस पर मत करिए कि बच्चे का परसेंटेज कितना है, फोकस इस पर करिए कि उसका 2 से 3 साल में किस पर्टिकुलर स्ट्रीम के लिए इंटरेस्ट डेवलप हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, अगर 60 to 90 के ब्रैकेट के बीच में अगर आपके परसेंटेज हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि 90% वाला बच्चा कंप्यूटर साइंस ले या फिर 60% वाला बच्चा कॉमर्स या लॉ ले. इट कम्प्लीटली एंड एंटायरली डिपेंड अपॉन योर चॉइस ऑफ करियर, जिसको आप आगे तक लेके जाना चाहते हैं. सेकेंडली, जब आप ब्रांच स्पेसिफिक कोर्सेज की बात करते हैं तो इसको थोड़ा सा और इंडस्ट्री को रीलोकेट करिए और देखिए कि क्या कंप्यूटर साइंस एक पर्टिकुलर ब्रांच के अलावा भी बहुत और सारी ब्रांचेस हैं, प्लस कंप्यूटर साइंस के अंदर ही और 17 तरीके के स्किल सेट्स हैं. तो अगर हम बहुत अच्छे परसेंटेज लॉजिक्स और कोडिंग के एक्सेप्शंस के साथ आते हैं तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें ये सब्जेक्ट किन किन क्वेरीज के साथ आगे लेके जाना चाहिए. बहुत सारे क्वेश्चंस इस बात पे रहते हैं कि हमारा परसेंटेज लो है तो क्या हमें मैकेनिकल सिविल चूज़ करनी चाहिए. इसका परसेंटेज से कोई भी कनेक्शन नहीं होता. और कभी भी ये ध्यान ना रखें कि आप जब कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या कोई भी ब्रांच चूज़ करते हैं तो उसमें
आगे का करियर पाथ जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग और आगे बढ़ाने वाला है। इट इज़ नॉट समथिंग कि आपका अगर परसेंटेज लो है तो आपको कोई एक ब्रांच चाहिए या परसेंटेज हाई है तो आपको एक ब्रांच चाहिए। इट हैज़ ऑल टू डू विद योर एंटायर कंप्लीशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्किल सेट विद डेडिकेशन। आप जिस स्किल सेट को बहुत अच्छे से करेंगे, जॉब्स उसके लिए मार्केट में अवेलेबल होंगे। तो आप अपना करियर चॉइस रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स वो लीजिए जिसके आपके लिए इंटरेस्ट ऑलरेडी आ चुका है या फिर आपने 10th to 12th के बीच में उससे रिलेटेड कोई काम किया है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ कनेक्ट टू अस। हम आपको 1 से 2 घंटे की करियर काउंसलिंग के बाद बहुत इजीली गाइड कर सकते हैं कि आपको किस फील्ड में एडमिशन लेना चाहिए। टेकिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ द प्लेसमेंट ऑफ सिस्टेक? दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम नमन. Naman, placements everywhere is going good. In SISTEC also we have completed our 87% of placement this year. अच्छी बात यह है कि ये सारे प्लेसमेंट्स हम एक कोर सेक्टर को ध्यान में रखते हुए करते हैं। फॉर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट हमको ये समझना पड़ता है कि अगर हमारे यहाँ एडमिशन लिए बच्चे के पास 4 चॉइसेस हैं तो उसको ऑफर्स भी चारों चॉइसेस में मिलने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट इज हैविंग अ करियर चॉइस ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो बट ऑब्वियस उसका करियर पाथ और प्लेसमेंट जो होगा वो कंप्यूटर ब्रांचेस में होगा। फॉर एग्जाम्पल, दे ऑप्ट फॉर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स पीपल, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि उसका प्लेसमेंट भी उसी कोर पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर हो जिसमें उसने 3 साल की पढ़ाई करी है। टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग, बट ऑब्वियस उन्हें प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, क्वालिटी कंट्रोल या फिर डिज़ाइनिंग में जाना चाहिए। हम एट प्रेजेंट हम कभी भी ये नहीं सोचते कि हम मैकेनिकल या सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को लेके उन्हें भी आईटी जॉब्स ऑफर करें, जो कि आज का करेंट ट्रेंड बाकी सभी इंस्टीट्यूट्स में चल रहा है। तो वी हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑल दीज थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम गॉडी and he is asking about in coming year which branch is most demanding. To answer this question, you have to take COVID-19 in consideration. Like, you know, system has traditionally changed as of now, and you know, talking about any particular branch is very early. It is not something we are making our own perception. It is with the news feeds which is dependent on other branches also. जो भी हम न्यूज़ से लेके जा रहे हैं, जो भी हम आपके चीज़ों को पढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं और चीज़ों को जानना चाहते हैं, उन सब का प्रेशर इस समय इस पे है कि इंडिया के अंदर जॉब्स बहुत डेविएशंस में अवेलेबल होने वाली हैं। रीज़न बीइंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, डिज़ाइनिंग इंडस्ट्रीज, आईटी सेक्टर्स, ये सभी ब्रांचेस एक टाइम से अपने आप ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। जब भी आप अगर अभी से एडमिशन लेते हैं और 12th स्टैंडर्ड को पास कर रहे हैं तो आपके पास अच्छा 4 इयर्स का गैप है। इस 4 साल में चीज़ें फिर से चेंज होंगी, चीज़ें बदलेंगी। एंड बीइंग एन इंडियन, आपको पता होना चाहिए कि हमारी ग्रोथ रेट अभी भी एज फार एज अदर कंट्रीज आर कंसिडर्ड थोड़ा सा बेटर है। तो जॉब्स के कारण अगेन हमें पहले फोकस करना पड़ेगा अपने ट्रेनिंग्स और पर्टिकुलर स्किल सेट्स को। इवन देन हम तब बात कर सकते हैं कि आपका बैंड किस तरफ और कौन सी ब्रांच के लिए है और उसमें जॉब्स जो हैं वो हैं और किस परसेंटेज पे वो ग्रो कर रहे हैं। अगेन आई एम कोटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग दैट ब्रांचेस का कोई भी जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस अगर हैं आपके दिमाग में तो इसको भूल जाइए कि इंडिया के अंदर जॉब्स की प्रॉब्लम है या फिर किसी पर्टिकुलर ब्रांच में कम है। Why we are always saying that Sagar group of institution is different only because I think in MP we are the only college जो इस पर्टिकुलर ब्रांच सेग्रीगेशन को लेके आगे बढ़ा है। और अभी तक एंटायर 10 years ऑफ हिस्ट्री हमने हमेशा यही कोशिश करी है कि जो जिस पर्टिकुलर ब्रांच को ऑप्ट करते हैं उनका प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर उसी फील्ड में हो जिसमें उनने 3 साल की पढ़ाई करी है। तो यू कैन चूज एनी ऑफ द ब्रांचेस एज फार एज दिस पर्टिकुलर थिंग इज considered. Now next questions from Akansha Bharti, that campus recruitment training is conducted in-house or out-house. We are the institute where we are conducting our in-house corporate trainings, whether you talk about the technical or soft skill trainings. SISTEC में हमेशा से ट्रेनिंग्स को एक महत्वपूर्ण हिस्सा दिया गया है, जिसमें सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग्स की अगर हम बात करें तो दी टीम इज़ एंटायरली अवेलेबल फॉर यू 24/7। हमेशा आपके साथ खड़ी हुई है, आपके राइट फ्रॉम योर पर्सनालिटी, राइट फ्रॉम योर एप्टीट्यूड, योर कम्युनिकेशन स्किल पार्ट, सारी चीज़ों पे के ऊपर जब वो प्रेशराइज करते हैं और आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं तो आई डोंट थिंक दे आर लीविंग एनी अनटर्न स्टोन।
कोई भी ऐसा बच्चा, वेदर आप एक मिडिल क्लास को बैकग्राउंड आप एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हों, आप एक हाई क्लास से हों, या फिर आप में जो भी चीज़ की कमी होती है उस चीज़ पे ब्रश अप करने के लिए एंटायर ट्रेनिंग टीम इज़ अवेलेबल 24/7। टॉकिंग अबाउट टेक्निकल ट्रेनिंग, वो भी हमारे यहाँ इन हाउस है कम्प्लीटली। सागर इंस्टीट्यूट में आपके पास फुल टाइम कॉर्पोरेट ट्रेनर्स हैं जो आपको ऑन टाइम हर एक ब्रांच के लिए वो सारी ट्रेनिंग्स अवेल कराते हैं जो आपके यूनिवर्सिटी करिकुलम के बियॉन्ड आती हैं। वो सारी ट्रेनिंग जिससे आप इंडस्ट्री और एकेडमिया दोनों गैप को फुलफिल करते हैं और टर्न आउट टू बी अ गुड स्टूडेंट जिसके पास अपनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट ब्रांच से रिलेटेड एक स्किल है, वो ब्रास्ड स्किल है, एंड इवन देन उसको परस्यू करना आपको आता है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये होती है कि इट इज़ नॉट समथिंग कि आप कोई भी एक चीज़ को पढ़ रहे हैं और उस चीज़ को सिर्फ बुकिश या फिर एक एडवांस नॉलेज पे लेके नहीं जा रहे हैं। फोकस ये होता है कि अगर आपने कोई भी चीज़ पढ़ी है तो आप उसका प्रैक्टिकल करें, उसे एक एडवांस लेवल तक लेके जाएं और जॉब्स में भी उसे इनपुट करने की बजाय उसे इनोवेट करें। तो जब आप किसी भी चीज़ के लिए काम करते हैं और चीज़ों को बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो डिपेंडेंसी इस पे क्रिएट होती है कि बीइंग एन इंजीनियर क्या आप उससे कुछ और इनोवेट कर पाए, आपने क्या क्रिएशन दिया, आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना अपना पार्टिसिपेशन दिया, एंड दैट टू ऑन व्हाट लेवल। सो ये डिस्टिंग्विश आप तब कर पाएंगे जब आप यहाँ के प्रोफेसर्स और यहाँ के ट्रेनिंग टीम से खुद 1-to-1 बात करेंगे और उनके पुरानी चीज़ों में जो हमारे पिछले अलुमिनाई स्टूडेंट्स हैं उनका स्टेटस देख पाएंगे। So our next question is coming out to be Priyanka. That is, campus recruitment internships are available. Of course, yes. Internships are a category where it is very important to see that any or every child who is getting enrolled in SysTech, whether from any background, they will be performing on what level to their related subject Kapskal. So for example, if I'll elaborate this, जब हमारे यहाँ प्लेसमेंट्स 4th ईयर में आके स्टार्ट नहीं होते, इट इज़ गेटिंग स्टार्टेड इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। जब आप फर्स्ट ईयर से प्लेसमेंट के लिए एनरोल होते हो तो आपके ऊपर ट्रेनिंग टीम वो काम करती है जिससे आपके कोई, फॉर एग्जांपल यू हैव ऑप्ट फॉर अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कितने पाथवेज अवेलेबल हैं आपके लिए कमिंग फ्यूचर में, वो स्किल सेट्स पे आपको एक ओवरऑल पर्सपेक्ट, आपको एक व्यू बताती है। जब आप उस व्यू को समझ पाते हो तो आपको ये समझ में आता है कि मैंने इस फील्ड में अगर एनरोल किया है या एडमिशन लिया है तो मेरे लिए आगे 3 साल कितनी मेहनत के हैं और मुझे कौन कौन सी इंडस्ट्री जो है वो वेलकम कर सकती हैं। सेकेंड ईयर इटसेल्फ आप ये समझते हो कि उनसे रिलेटेड जो अलुमिनाई हैं जो हमारे कॉलेज से पास आउट हैं, वो जहाँ पे काम कर रहे हैं बीइंग स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वो किस पर्टिकुलर एवेन्यू पे हैं इस समय और कौन सी पोजीशन पे वो काम कर रहे हैं, उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या है। कुछ सेमिनार्स जो कि कॉर्पोरेट के लोग ही आपसे बात करते हैं, वहीं पे जो लोग काम करते हैं उन्हीं कंपनीज को पिच करते हैं और वही लोग आपसे रूबरू बात करते हैं कि एग्जैक्टली उनकी इंडस्ट्री में आने वाले 2 साल में क्या डिफरेंस आने वाला है और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स इनिशिएट होने वाले हैं। जब आप 3rd ईयर में आते हैं तब आपको इलाबरेटेडली ये बताया जाता है कि उस पर्टिकुलर फील्ड जो आपने सिलेक्ट करी हुई है उससे रिलेटेड एक इन हाउस ट्रेनिंग और आउट हाउस ट्रेनिंग फॉलोड बाय a dedicated internship for 15 days to 30 days or it is converted into hours as well. आप जो भी चीज़ सीख रहे हैं थ्रू आउट योर कोर्स करिकुलम, उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और बहुत ही डिफरेंट होता है। जो भी चीज़ आपको इन हाउस बताई जाती है, आउट हाउस और इंडस्ट्री में उसको अप्लाई कैसे करते हैं, दिस इज़ दी वेरी डिफरेंट थिंग। जब आप इसको करना सीखते हैं उसमें भी टाइम लगता है, आपको कुछ फेजेस डेवलप करने पड़ते हैं, 15 आवर्स, 30 आवर्स, 60 आवर्स, 70 आवर्स एंड सो ऑन। जब आप इसके लिए तैयार हो जाते हैं तब आप 4th ईयर में आके एक परफेक्ट प्लेसमेंट प्रोडक्ट बनते हैं। देन वी विल एबल टू डिसाइड कि आपका एक पर्टिकुलर ऑरा किस डायरेक्शन में जा रहा है और आपके लिए कौन सी इंडस्ट्री जो है वो सबसे बेस्ट और सूटेबल प्रोफाइल को लेके आएगी। एंड येस, ऑफ कोर्स आवर बेंचमार्क और एनीथिंग यू कैन से कि हमारा काफ़ी सारा अलाइनमेंट होता है टुवर्ड्स योर कॉस्ट टू कंपनी ऑल्सो, दैट इज़ योर पैकेजेस। हम नहीं चाहते कि आप कोई भी इंडस्ट्री या किसी भी फील्ड में जाएं एंड यू विल बी अर्निंग विच इज़ लेस अकॉर्डिंग टू यू। आप जब इतनी मेहनत करते हैं 1st ईयर से फाइनल ईयर तक आते आते, तो दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम आपको वो बेस्ट पैकेज दें जिसकी तैयारी आप ऑलरेडी पिछले 3 साल में कर चुके हैं। So I guess I have come entirely talking about your queries.
Now we have a next question from Rohit, that is, how recruitment process is same for all companies or it is different? Rohit, this is a very good question. Now seeing the scenario, the recruitment process is not yet same for all the companies, but obviously because it is getting different from glot to glot. For example, talking about IT companies, they already tried for some online test, aptitude test, followed by a GD and then to technical interview. Now scenario is very changed. Now companies are demanding a very superhuman product from any institute. So their upliftment and their choice of process would be like they provide some assessments, they provide some online things to you and see how knowledgeable you are. Will you be able to provide your inputs also? आप डिसीजन मेकिंग भी दे सकते हैं क्या? आप क्रिप्ट अरिथमेटिक में कितना लॉजिकल प्रूव कर सकते हैं अपने आप को? एंड देन दे विल जंप अप टू अ फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू. तो प्रोसेस चेंज है, डेविएटेड है. इट इज़ नॉट नेसेसरी. हाँ, क्या ज़रूरत है कि आप जो भी फील्ड पढ़ रहे हैं या जो भी चीज़ को 3 साल 4 साल में लेकर आ रहे हैं वो इतना अप्रोप्रिएट होना चाहिए कि फंडामेंटली यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. और जब आपकी तैयारी फंडामेंटली होती है तब उसमें किसी भी प्रोसेस को आप इनपुट कर लें, सिलेक्शन विल बी योर्स. तो इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस कि हम इसमें अप्लाई कर सकें या नहीं कर सकें. नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग आउट फ्रॉम दी शुभम, like who all our faculties would be teaching this particular subject? Okay, Shubham, yeah, this particular question would be clarified by a departmental head of our institute. So once lockdown is over, you are welcome to meet us and to deliver all your queries related to a particular bracket of subject curriculum. Head of the departments are able to provide you all the guidelines कि एक particular department किस किस चीज़ों पे कौन कौन से टेक्निकल ट्रेनिंग्स आपको देता है. फॉर एग्जाम्पल हम बहुत कोशिश करते हैं एंड आई गेस वी आर दी फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन एमपी जो अभी तक मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, दिस इज़ आवर 3rd ईयर जब हम स्टूडेंट्स को प्लेस करा रहे हैं इस पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ के लिए. तो ये अच्छी बात होगी कि अगर आपको ये पता करना है कि ऐसा कौन सा टेक्निकल कोर्स हम चलाते हैं जिससे कि आगे इंडस्ट्री डिमांड भी आती है या नहीं, या किस तरीके की आती है, तो इट इज़ ये आप ब्रांच वाइज जाएंगे. तो इसमें या तो आप मुझे उसमें बताइए कि आप कौन से पर्टिकुलर ब्रांच के लिए डेविएटेड हैं. अगर मैं बात करूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इट इज़ अबाउट प्रोडक्ट एंड मैनेजमेंट followed by a designing curriculum. CATIA, ANSYS, a lot many softwares are available. और जब हम इसके ऊपर ट्रेनिंग कराते हैं तो बट ऑब्वियस इट विल enhance your package also and your skill will be coming up to be a current skill which is required by any company. Next question we are coming from Mukesh Tripathi. It is something how to get placements in near future. Okay, Mukesh, no need to worry about placements because you have all the 4 years of bracket with you. 4 years के ब्रैकेट में यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइक बहुत टाइम है आपके पास ये चीज़ सिलेक्ट करने का और समझने का कि कौन सी स्ट्रीम होनी चाहिए, कितना आगे तक जाना चाहिए, कौन सा स्किल सेट लेना चाहिए, मार्केट में क्या ट्रेंडिंग चल रहा है. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम एक ही पर्टिकुलर ब्रांच पे स्टिक रहें और उस चीज़ों के आगे हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए. तो जब हम इन चीज़ों को आगे पैरेलल स्टार्ट करते हैं और इनिशिएट करते हैं तो हमें बहुत सी नई चीज़ें भी मिलती हैं, क्रॉस डोमेन्स भी मिलते हैं. और कभी कभी ये भी समझ में आता है कि आफ्टर ऑल दी स्फेयर ऑफ इंजीनियरिंग हो सकता है कि मेरा बेंड टुवर्ड्स एक दूसरे फील्ड पे हो. तो जब आप फील्ड एक्सप्लोर करना चाहेंगे तो वो तभी आएगी जब आप एक पर्टिकुलर ब्रांच में एडमिशन लेते हैं. आपको एडमिशन लेने से पहले ये भी काउंसिल किया जाता है कि आप एग्जैक्टली किस तरफ आपका बेंड है और हम आपको क्या क्या चीज़ें बेनिफिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. आपको वो बेनिफिट्स अगर उस पर्टिकुलर थीम के अकॉर्डिंग लगते हैं या फिर आपका बेंड ऑफ इंटरेस्ट उस समय जाता है तो इट इज़ सो वेरी पर्टिकुलर थिंग जो आप ऑप्ट कर सकते हैं और आगे प्लेसमेंट्स के लिए सोच सकते हैं. अगेन मैं इसको कर रहा हूँ आफ्टर दिस कोविड-19 ऑल्सो इतना बुरा सिनेरियो नहीं होने वाला है जॉब्स को लेकर, बिकॉज अभी जो आप मार्केट में सुन रहे हैं बहुत अच्छे से कि इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है. दिस इज़ सो वेरी ट्रू. बट जो भी कंपनीज अपने मेजर्स लेंगी वो एक पर्टिकुलर एंटायर सेट ऑफ एम्प्लॉयज़ पे लेंगी. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो फ्रेशर पे ले. एंड सेकेंड, फ्रेशर रिक्रूटमेंट्स के लिए अभी किसी भी इंडस्ट्री ने मना नहीं किया है. दो दे कैन रिड्यूस द नंबर बट दे विल नॉट कट ऑफ टेकिंग any employee on a fresher mode on any branch.
तो आने वाला टाइम जो है हम ये मान के चलें कि अगर आप अभी 12th परस्यू कर रहे हैं और इसके बाद फर्स्ट ईयर पे आना चाह रहे हैं, तो आपके पास अच्छे 3 साल से 4 साल का टाइम है जिसमें आप और इंडस्ट्री दोनों के पास ग्रो करने का बहुत अच्छा टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग again on the internship, that it is a paid or not paid. Fine, Vipin, internships are basically, we are trying that internship would be in a paid format, but understand what is the basic intensity and need of this internships over the years. Internship सारे colleges में I guess applicable है या नहीं, you have to find out. Second thing, हम SysTech में internships compulsory हैं, right from student who have enrolled टू स्टूडेंट जिनके बैक लगे होते हैं उन लोगों को लिए भी। वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज यही एक बहुत अच्छा सेक्टर होता है जब आप अपने सारे स्किल सेट एक पर्टिकुलर कॉरपोरेट को दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, योर ड्रीम कंपनी इज़ गूगल, और आप लेकिन गूगल में प्लेस होने के लिए उतना स्किल सेट नहीं लेकर आ पाए, तो आप उसकी स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? इट इज़ नॉट समथिंग कि आप उसके नंबर ऑफ प्रोसेसेस में इनरोल हुए हो और उसके बाद उस चीज़ को क्रैक नहीं कर पाओ। आपके लिए सबसे पहला मोड होगा टू क्लैरिफाई ऑल द कॉम्पिटिशन एंड इंटर्नशिप विच इज़ वेल्ड बाय द गूगल कंपनी or some other company, and you can get back to your placements in some years or some months after your internship gets completed. So internship is very very important as far as your career path is decided. And second thing, if you talk about their stipend paid or not, so completely at SysTech 80% of company will be coming with the stipend and 20% coming with the non-stipend base. Next we are saying, Sony is asking about what is the criteria of placement. Okay, if you talk about the criteria, you can opt for good 55% and above that. It is not necessary. Gone are the days where number of companies are stick to the higher percentage marks of any students, or the scholastic students will go and jump for a particular sector. It is not now. Strategies of the corporates are different now. Now corporates are actually focusing on a good candidature and a well profiled, systematized. So basically they are looking for all those things which is required of, according to their product, according to their process, and according to their company's fare. So it is not necessary that if you are having a lower percentage or a lower side of percentage, there is hassle between you won't be able to get the proper placements or something, because again routes are very different and you would be in a position to get all the good skill based jobs, which is completely and entirely not based on your percentage specifically. वंस यू ऑफ कोर्स अगर आपके परसेंटेज लो होंगे तो आपकी मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, जहाँ पे आप अपना एफर्ट्स लगाएंगे और अपना एक स्किल सेट तैयार करेंगे। जैसे ही वो स्किल सेट तैयार होता है, कंपनीज विल श्योरली वेलकम यू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम सीइंग फ्रॉम द साइड ऑफ अंकित चौहान. Ankit is asking about what kind of, if I am taking a mechanical branch, then would be able to get placed. Okay, Ankit, of course, if you will be taking any of the branches, again, I think you have joined late. So I will clear you again that if you choose any of the branches, right from computer science, electrical, electronics, civil, mechanical, pharmacy, if you are taking any of the branches, it will be sure from our side that you will be in a position to place. Again, आपकी मेहनत होनी चाहिए आपके 3 साल के करिकुलम पे, और उससे आपने जो भी अपना एक स्किल सेट बनाया है उसके ऊपर. वंस यू विल बी ईदर यू आर चूजिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग विद बेस्ड ऑन एनी परसेंटेज क्राइटेरिया. आपके जो भी परसेंटेज होते हैं, अगर आप उससे जो भी फील्ड चूज़ करते हैं, उसके लिए प्लेसमेंट्स में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. जब भी प्रॉब्लम आती है किसी स्टूडेंट को प्लेस होने में, तो इट इज़ बेस्ड ऑन या तो वो ट्रेन नहीं है, स्किल्ड नहीं है, या फिर उसके पास कम्युनिकेशन या फिर एप्टीट्यूड का कुछ प्रॉब्लम है, या फिर उसने फंडामेंटल्स पे अपने काम नहीं किया है. इन सारी चीज़ों के ऊपर हमारी डेडिकेटेड टीम है जो हर बार काम करती है और आपको इंश्योर करती है कि यू विल गेट द प्लेसमेंट फर्स्ट. सो आई होप आई हैव क्लियर्ड ऑल द क्वेरीज. Now there are some questions related to scholarships and available or not. So this is a strategic thing which you would be in a position to clarify once you will be taking admission to any institute. So
I guess I have cleared all the queries as of now. Still you have any other queries which you want we to answer, so please write down in comment box and we'll get back to you as early as possible. Thank you. Thanks for watching.